فقر کی راہ گزر پر چلتے ہوئے کچھ ہی دیر قبل حسین راج اور ملکہ ڈیرہ غازی خان کی ادھڑی ہوئی سڑکوں سے گزر کر یہاں ایک ڈیرے پہ پہنچے تھے۔ حسین راج اور ملکہ کے اذہان پر ابھی تک پیر پٹھان کی درگاہ کے اثرات چھائے تھے۔ ملکہ حسین راج سے بھی کچھ زیادہ رنجیدہ تھی۔ وہ پیر پٹھان سرکار کی درگاہ میں ملنے والے بزرگ کے پیچھے لپکنے ہی لگی تھی کہ اچانک حسین راج اس کے سامنے نمودار ہوا۔ اس کی پریشانی بھانپ کر پورا آستان چھان مارا، مگر ملکہ کی دل جوئی کرنے والے بزرگ انہیں کہیں نظر ہی نہ آئے۔ آخر کار تھک ہار کر وہ انڈس ہائی وے کے ذریعے ڈیرہ غازی خان پہنچے اور پھر یہاں اپنے ایک جاننے والے کے ہاں نکلے۔ ان کے ساتھ ہمراہ ڈرائیور اعجاز کو شاید ان کے آرام کا خیال تھا۔ وہ رات کا کچھ حصہ اسی ڈیرے پر گزارنا چاہتا تھا۔ ان کی یہاں بلوچی سجی سے تواضع کی گئی۔ کھانے سے فراغت کے بعد وہ گپ شپ میں مصروف تھے کہ اسی اثناء میں سرائیکی خطے کے معروف شاعر عزیز شاہد اپنی سائیکل پر وہاں آن پہنچے۔ ان کے آتے ہی محفل نے حدت پکڑ لی۔ ملکہ ابھی تک اپنے ہی احساسات میں محو تھی کہ عزیز شاہد صاحب کی دھیمی آواز سرسراتی ہوئی بلند ہوئی۔ جوگ تے جگ جہاں جھیں شے ہے، جیونی درمیان جھیں شے ہے۔ لگتا تھا یہ شعر ملکہ کی نظر کیا گیا تھا، کیونکہ ڈیرے پر موجود درویش نے انتہائی فہمیدہ انداز میں اس شعر کی تشریح کرتے ہوئے زندگی کو درمیان کی سی چیز بتایا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ عزیز شاہد نے لوگوں کی توجہ عارفانہ انداز میں غیر جانبداریت یعنی نیوٹریلٹی اور مرکزیت کی طرف مبذول کرا دی ہے۔ یہ مرکزیت ہی پریت ہے، یہ پریت عام نہیں خاص ہے، اور بابا صاحب کا ہی یہ خاصہ ہے۔ وہ درویش حضرت بابا فرید سرکار کی پریت کو گرو رجنیش کے الفاظ میں بیان کرتے ہوئے بولا، شیخ فرید پریم کے راہی ہیں۔ جس طرح کا پریم کا گیت بابا فرید نے گایا ہے اس جیسا کسی نے نہیں گایا۔ کبیر بھی پریم کی بات کرتے ہیں لیکن دھیان کی بھی بات کرتے ہیں۔ داؤد بھی پریم کی بات کرتے ہیں پر دھیان کی بات کو بالکل بھول نہیں جاتے۔ نانک بھی پریم کی بات کرتے ہیں لیکن وہ دھیان سے گھلی ملی ہے۔ بابا فرید نے شدھ پریم کے گیت گائے ہیں، دھیان کی بات ہی نہیں کی۔ پریم میں ہی دھیان جانا ہے، اسی لیے پریم کی اتنی شدھ کہانی کہیں اور نہیں ملے گی۔ فرید خالص پریم ہے۔ پریم کو سمجھ لیا تو فرید کو سمجھ لیا، فرید کو سمجھ لیا تو گویا پریم کو سمجھ لیا۔ پریم کے ضمن میں کچھ باتیں راستے کی خبر ہوں گی، ان کو پہلے دھیان میں بٹھا لیں۔ پہلی بات جسے آپ پریم کہتے ہیں، بابا فرید اس کو پریم نہیں کہتے۔ آپ کا پریم تو پریم کا دھوکہ ہے، وہ پریم نہیں، صرف پریم کی نقل ہے، نقلی سکہ ہے، اور اسی لیے تو اس پریم سے سوائے دکھ کے آپ کو کچھ اور نہیں حاصل ہوتا۔ جس پریم کی بات بابا فرید کرتے ہیں وہ تو تبھی پیدا ہوتا ہے جب آپ مٹ جاتے ہیں، آپ کی راکھ سے پیدا ہوتا ہے وہ پریم۔ آپ کا پریم تو ہنکار کی سجاوٹ ہے، آپ پریم میں دوسرے کو چیز بنا دیتے ہیں۔ آپ کے پریم کی کوشش میں دوسرے کی ملکیت ہے۔ آپ چاہتے ہیں آپ جس کو پریم کریں وہ آپ کی مٹھی میں بند ہو، آپ مالک ہو جائیں۔ دوسرا بھی یہی چاہتا ہے۔ آپ کے پریم کے نام پر ملکیت کا سنگھرش چلتا ہے۔ دنیا کا پریم، دنیا کا پیار صرف ملکیت کا نام ہے، مگر جس پریم کی بابا فرید بات کر رہے ہیں وہ ایسا پریم ہے جہاں آپ دوسرے کو اپنی ملکیت دے دیتے ہیں، جہاں آپ اپنی مرضی سے منسوب ہو جاتے ہیں، جہاں آپ کہتے ہیں تیری مرضی میری مرضی۔ ملکیت کا تو کوئی سوال نہیں۔ بلا شبہ ایسا ہی پریم دو لوگوں کے بیچ نہیں ہو سکتا۔
ऐसा प्रेम दो एक जैसी हालत में खड़े जहनों के मबैन नहीं हो सकता। ऐसे प्रेम की छोटी मोटी झलक शायद गुरु के पास मिले, मुर्शिद के पास मिले, पूरी झलक तो रब के पास ही मिलेगी। ऐसा प्रेम मियाँ बीवी का नहीं हो सकता, दोस्त दोस्त का नहीं हो सकता। दूसरा, जब आप जैसा ही है तो आप कैसे खुद को कुर्बान कर पाओगे। सुबह उठेगा मन में, हजार खौफ गिरफ्त में लेंगे मन को। दूसरे पर एतमाद नहीं हो सकता। इंसान और इंसान के दरमियान प्रेम महदूद है। आप छोड़ोगे भी तो शर्तों से छोड़ोगे। आप अगर थोड़ी दूसरे को मलकियत भी दोगे तो भी पूरी नहीं दोगे। थोड़ी मलकियत बचा लोगे, वापसी का रास्ता रहे। अगर कल वापसी आना पड़े तो आप वापस आ सको। ऐसा न हो कि फिर वापसी की जगह न रहे। आप सीढ़ी को हटा नहीं दोगे, लगाए ही रखोगे। सीधा साधा प्रेम बगैर शर्त के नहीं हो सकता, अनकंडीशनल नहीं हो सकता। और प्रेम जब तक बेशर्त ना हो तब तक प्रेम ही नहीं होता। आपसे ऊपर कोई जिसको देख के आपको आसमान के बादलों का ख्याल आए, जिसकी तरफ आपको आंखें उठाना हो तो ऐसे जैसे सूरज की तरफ कोई आंख उठाए, उसके और ऊपर के दरमियान एक तवील फासला हो, एक नाप फलांगी जाने वाली खाई हो, जिसमें आपको रब का थोड़ा सा शैबा मिले, उसको ही हमने गुरु कहा है, मुर्शिद कहा है। गुरु और मुर्शिद मशरिक की निराली खोज है। मगरिब इस रस से महरूम है। उसको गुरु की कुछ खबर ही नहीं, ये वसीला जाना ही नहीं मगरिब ने। मगरिब को दो दोस्तों का पता है, उस्ताद शागिर्द का पता है, मियाँ बीवी का पता है, प्रेमी प्रेमिका का पता है। लेकिन बाबा फरीद जिसकी बात करेंगे, गुरु और चेला, मुर्शिद और मुरीद, उसका कुछ पता नहीं। गुरु और चेले का मतलब है, मुर्शिद और मुरीद का मतलब है कोई ऐसा इंसान जिसमें से आपको रब की झलक मिली, जिसके अंदर आपने आसमान को देखा, जिसकी खिड़की में से आपने लामहदूद हस्ती में झांका। उसकी खिड़की चाहे छोटी ही हो, खिड़की के बड़ा होने की कोई ज़रूरत भी नहीं, लेकिन खिड़की में से जो झांका वो आसमान था। तब किसी का हुआ जा सकता है जब आप पूरा खुद को छोड़ सकते हों। मज़हब की तलाश असल में मुर्शिद की ही तलाश है, क्योंकि उसके बगैर आप मज़हब को कहाँ देख पाएंगे। आप जहाँ जाएंगे अपने ही जैसा इंसान पाएंगे। तब अगर आपकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा फ़र्द आ जाए जिसको देखकर आपको अपने से ऊपर आंखें उठाना पड़ती हों, जिसको देखकर आप में दूर के ख्वाब ख्वाहिशें भर जाती हों, जिसको देखकर आपको दूर आसमान से बुलावा मिलता हो और उसकी कोई फिक्र न करें कि दुनिया उसके बारे में क्या कहती है। ये सवाल नहीं है। आप अगर उस खिड़की में से कुछ दीदार हुआ हो तो ऐसे फर्द से खुद सुपुर्दगी का हुनर सीख लेना चाहिए। उससे आपको पहले दर्स मिलेंगे, इब्तदाई लफ्ज़ मिलेंगे खुद को छोड़ने के। वो ही दर्स अल्लाह के पास काम आएगा। गुरु और मुर्शिद मंजिल नहीं है, गुरु तो रास्ता है। आखिर में तो गुरु भी हट जाएगा, खिड़की भी हट जाएगी, आसमान ही रह जाएगा। जो खिड़की रुकावट बने, हटे ना, वो तो आसमान और आपके बीच जुदाई हो जाएगी, मिलाने और जोड़ने की बजाय तोड़ने वाली हो जाएगी। और जिस प्रेम की बाबा फरीद बात कर रहे हैं, उसकी झलक आपको कभी गुरु और मुर्शिद के पास मिलेगी। मुर्शिद और गुरु के पास जहाँ आपको झलक मिल जाए, वहाँ ही सीख लेना अल्लाह का दर्स, क्योंकि प्रेम की पहली खबर वहाँ ही होगी। वहीं आप झुक सकेंगे। जहाँ आप झुक सकें वहाँ ही मज़हब की शुरुआत है। जहाँ आप झुक जाएं, जहाँ पर आपका सजदा हो जाए, आप समझ लें वो जगह अल्लाह का घर है। जिसको झुकना आराम से हो जाए, ज़रा भी कोशिश ना करनी पड़े, झुकना पुरलुत्फ हो जाए, लड़ना ना पड़े अंदर, वहीं आपको प्रेम की पहली खबर मिलेगी। वहीं आपको पहली बार पता चलेगा
प्रेम सखावत है, चीज़ों का नहीं, धन दौलत का नहीं, अपना खुद का। हज़रत बाबा फरीद जब प्रेम की बात करें तो याद रखना, ये सोच विचार वाला प्रेम नहीं है, ये पागल प्रेम है। ये भाव जज्बा का प्रेम है, और जब भाव से आपको कोई बात पकड़ लेती है तो आपको जड़ों से पकड़ लेती है। फिक्र सोचे तो दरख्तों में लगे हुए पत्तों की मानद है, मतलब दरख्त के नीचे छुपी हुई जड़ें जैसा प्रेम। जैसे छोटा सा बच्चा भी जन्म लेते ही प्रेम के भाव से आगाह होता है। फिक्र और सोच लेकर बच्चा पैदा नहीं होता, फिक्र तो बाद में सिखाया जाता है, सिखाना पड़ता है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, संसार, तजर्बा, तब फिक्र करना सीखता है इंसान। लेकिन भाव तो पहली घड़ी से ही करता है। अभी अभी पैदा होने वाले बच्चे को भी गौर से देखें तो आप देखेंगे वो भाव से, प्रेम से, प्यार से लबरेज है। अगर आप खुश हैं तो मज़े से आपने छुआ है तो वो भी खुश होता है। अगर आप परेशानी से भरे पड़े हैं और आपके लम्स में प्रेम की गर्मी या जोश नहीं है तो वो आपके हाथों में से अलहदा हो जाना चाहता है, वो आपके पास नहीं आना चाहता। अभी सोच विचार कुछ भी नहीं है, अभी माथे की लकीरों ने कुछ भी नहीं सीखा होगा। अभी तो ज्ञान, इल्म, रवैया बनेगा, तब वो जानेगा कौन अपना है कौन पराया। अभी वो अपना पराया नहीं जानता। अभी तो जो प्रेम से करीब है वो अपना है, जो भाव से करीब नहीं वो पराया है। फिर तो वो जो अपना है उसके लिए प्यार दिखलाएगा, जो अपना नहीं है उसके लिए प्यार, प्रेम और भाव भी नहीं दिखाएगा। अभी हालत बिल्कुल उल्टी है, इसीलिए नन्हे बच्चों में मासूमियत होती है। और यसू जैसी हस्तियों ने कहा कि जो छोटे बच्चों की तरह होंगे वो ही मेरे रब की बादशाही में दाखिल हो सकेंगे। फरीद का प्रेम भाव का प्रेम है, और भाव तो आप बिल्कुल ही भूल गए हैं। आप जो भी करते हैं वो दिमाग से चलता है, दिल के साथ आपके नाते खो चुके हैं। तब थोड़ी सी तालीम ज़रूरी है, दिल की तरबियत ज़रूरी है। लोगों को थोड़ा बेदार रहने की ज़रूरत है। कभी आसमान में घूमते हुए, गुजरते हुए बादलों को देखकर नाचें भी, जैसे मोर नाचता है। बादल उमड़ने लगे, ऐसे लम्हों में आप बैठे क्या कर रहे हैं? बादलों ने पायल बजा दी, ढोल पर थाप दे दी, आप बैठे क्या कर रहे हैं? नाचें, गाएं। पंछी गीत गाते हैं, सुर में सुर मिलाएं। दरख्तों में फूल खिलते हैं और फल लगते हैं। आप भी अपने अंदर फल और फूल लगने और उगने दें। थोड़ा चारों तरफ जो वुसअत फैली हुई है, जिसके हाथ बेशुमार शक्लों में आपके पास आए हैं, कभी फूल, कभी सूरज की किरणें, कभी पानी की लहर, इससे थोड़ा भाव का रिश्ता जोड़ें। बैठे सोचते ना रहें कौसे कज़ा आसमान में खिले, तो आप ये ना सोचें कि इसकी फिज़िक्स क्या है। इस पंडितपन की वजह से आप महरूम रह जाएंगे। हाथ में फिज़िक्स की किताब रह जाएगी जिसमें कोई भी कौसे कज़ा नहीं है। आप उसके रस को महसूस करें, आप किसी नज़रिए से उसको समझने के चक्कर में ना पड़ें। कौसे कज़ा आसमान में खिली है, आप अपने अंदर भी कौसे कज़ा खिलने दें। आप भी ऐसे ही रंग बिरंगे हो जाएं। थोड़ी देर के लिए आप अपनी बेरंग ज़िंदगी में रंग उतरने दें। चारों तरफ से अल्लाह ताला बहुत सी सूरतों में अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन आप अपने हाथ फैलाते ही नहीं, वरना मिलन हो जाए। और यही सिखलाई होगी, यहाँ ही आप जागेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपको पहली बार पता चलेगा कि राज क्या है, फिक्र का और प्रेम क्या है, भाव का प्रेम क्या है। बाबा फरीद जिस प्रेम की बात करेंगे वो भाव है, और आपको उसकी थोड़ी सी तालीम लेनी पड़ेगी। और तालीम मुश्किल नहीं, किसी यूनिवर्सिटी में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं। अच्छा ही है कि भाव को सिखाने का कोई ज़रिया नहीं है, नहीं तो इदारे
इसको भी सिखा देते और फिर ख़राब कर देते। अगर बेखताएगी को सिखाने के लिए वर्जिश खाने जैसी जगह होती तो उसे बेखताएगी भी सिखा दी जाती, आप उसमें भी महर हो जाते और तब आप उससे भी महरूम हो जाते। भाव को सिखाने का कोई ज़रिया नहीं, कोई तरीका नहीं, सिर्फ थोड़ा जहन को ढीला करने की बात है। प्यार सदा से मौजूद है। फरीद कहते हैं कि बोले शेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे। शेख फरीद कहते हैं प्यार वाले से अपनी मोहब्बत जोड़ लो। बोले शेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे। ऐसा ही इसका तर्जुमा सदा से किया गया है कि फरीद कहते हैं मेरे प्यारों, मेरे अजीज़ों, अल्लाह से जोड़ लो अपनी मोहब्बत। लेकिन मुझे लगता है कि लफ्ज़ी तौर पर तो मानी ठीक है, लेकिन फरीद का गहरा इशारा लोगों से चूक गया है। मैं उसके तर्जुमा में थोड़ा फ़र्क करना चाहता हूँ। बोले शेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे। शेख फरीद कहते हैं प्यारो अल्लाह से लग जाओ। अल्लाह से लग जाना, उसी को मैं कह रहा था भाव की तालीम। अल्लाह से अगर आप प्रेम करने की कोशिश करते हैं तो आप वो ही प्रेम करेंगे जैसा आप अब तक करते रहे। आपकी भी मजबूरी है, आप नया प्रेम कहाँ से लाएंगे? आप अल्लाह से भी प्रेम करेंगे तो वही प्रेम करेंगे जो अब तक लोगों से करते आए हैं। बेशुमार भगत, मुर्शिद, मुरीद वही तो करते हैं। कोई मूर्ति सजा के बैठा है तो उसने मूर्ति ऐसे सजाई है जैसे कोई महबूबा अपने प्यार को सजाती है। हीरे जवाहरात लाद दिए हैं, सोने चांदी का सामान इकट्ठा कर दिया है, भोग लगा देती है, बस्तर पर सलाम देती है, उठा देती है। घर के दरवाजे बंद हो जाते हैं, खुल जाते हैं। अगर आपने अल्लाह को किसी रिश्ते में ढालने की कोशिश की तो फिर आप उसकी खिदमत में, सेवा में वैसे ही लग जाएंगे जैसे आप अपने ताल्लुकदारों, रिश्तेदारों की सेवा में लगे रहते हैं। अगर आपने अल्लाह को महबूब के रूप में देखा है जैसे सूफिया ने देखा है तो आप उसके गीत वैसे ही गाने लग जाएंगे जिस तरह लैला ने मजनू के गाए। लेकिन उन सब में से आपने जो प्रेम जाना उसी को आप अल्लाह पर थोप रहे हैं। नए प्रेम की रोशनी नहीं हो रही, इसीलिए तो हजारों मुरीद हैं लेकिन कभी एक आध ही अल्लाह को हासिल करता है, अल्लाह से वस्ल में कामयाब होता है। क्योंकि आपकी गुलामी आपके ही प्रेम का दोहराव होती है। अगर आपके प्रेम से है, हाँ, अगर आपके प्रेम से ही अल्लाह मिलना है तो कभी का मिल गया होता। आप फिर अल्लाह से वही रिश्ते नाते बना लेते हैं जो आप इंसानों से बनाते हैं। आपने उससे भी वही बातें करते हैं जैसी आप आदमियों से करते हैं। आपको किसी से प्रेम हो गया था, आपने कहा था तुझसे खूबसूरत कोई भी नहीं। इसलिए फरीद हमें कहते हैं प्यारे अल्लाह लगे। आप अल्लाह से लग जाओ। अब अल्लाह से लग जाने का मतलब क्या हुआ? वही होगा कि चारों तरफ से उस बेइंतहा हस्ती ने घेरा हुआ है। अल्लाह ने आपको घेरा ही हुआ है, आप भी लग जाओ। अल्लाह मुहीत है, हर चीज़ पे छाया हुआ है, आप ही अलग थलग हैं। अल्लाह तो लगा हुआ है, वो तो आपकी शाहरग के करीब है, आप भी लग जाएं। अल्लाह ने तो आपको इसी तरह भी घेरा हुआ ही है, इहाता किया हुआ है जैसे मछली को समंदर ने घेरा हुआ है। अल्लाह तो आपके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि अल्लाह ना जुड़ा हुआ होता तो आप बच ही ना सकते, एक लम्हा ही ना जी पाएंगे, सांस भी ना चलेगी, दिल भी नहीं धड़केगा। वो तो अल्लाह पाक आपके साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए तो आप धड़कते हैं, चलते हैं, सांस है, जिंदगी है। आप गलत भी हो जाएं तब भी अल्लाह साथ है, चोर भी हो जाएं, कातिल भी बन जाएं तब भी अल्लाह साथ है, क्योंकि अल्लाह के बगैर कातिल भी सांस नहीं ले सकेगा, चोर का दिल भी नहीं धड़केगा। बुरे हो या भले अल्लाह फिक्र नहीं करता, वो साथ ही रहता है।
اصل سوال اب یہ ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ کیسے ہو جائیں جیسے وہ ہمارے ساتھ ہے، بے شرط، انکنڈیشنل۔ کہتا نہیں کہ آپ بھلے ہوں تب ہی آپ کے اندر سانس لوں گا، نیک، پارسا، صوفی، سادھو، سنت، فقیر ہوں گے تب دل دھڑکے گا۔ اللہ ایسا نہیں کہتا۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر دنیا بہت بے رونق ہو جاتی، تب بھلے ہی بھلے لوگ ہوتے، برے دکھائی نہ دیتے، اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ اچھے ہی ہوں، دنیا میں تو کیسی بے رونق ہو جائے دنیا۔ لے کے اپنا اپنا عصا کھڑے ہیں، مارنے کو بھی کوئی نہیں، جس کو اپنا عصا مارے اس طرح اچھائی کی کہانی آگے نہیں بڑھتی۔ اللہ بھلے میں بھی سانس لے رہا ہے، برے میں بھی، اور ذرا بھی فرق نہیں رکھتا، دونوں میں بسا ہوا ہے۔ اللہ بے شرط بنا نیک و بد کا فکر کیے، آپ کی اہلیت اور نااہلیت کی پرواہ کیے بغیر آپ کے ساتھ ہے۔ آپ اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ سمندر تو آپ کے ساتھ ہے مگر آپ اس سے لڑ رہے ہیں۔ بولے شیخ فرید، پیارے اللہ لگے۔ فرید کہتے ہیں، پیارو اللہ کے ساتھ ہو جاؤ، ویسے ہی جیسے اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ اس اللہ کو ڈھونڈیں جو سب میں بستا ہے، سارے اطراف موجود ہے، جس نے ساری سمتوں کا احاطہ کیا ہوا ہے، کہیں درخت کی ہریالی میں، کہیں جھرنے کی نو میں، کہیں پربت اور سناٹے میں، کہیں بازار کے شور و غل میں، جس نے بہت طرح سے انسان کو گھیرا ہوا ہے، پوری کائنات کو گھیرا ہوا ہے۔ سارے جہان اس کے گھر کے ستون ہی ہیں، سارا آسمان اس کے گھر ہی کی چھت ہے، ساری وسعت اسی کی زمین ہے۔ آپ اس اللہ کو پہچاننا شروع کریں، اس کے ساتھ ہو جائیں۔ بولے شیخ فرید، پیارے اللہ لگے۔ اے تن ہوسی خاک نمانی گور گھرے، ساتھ ہونے میں زیادہ دیر نہ کریں، کیونکہ جلد ہی قبر میں انسان جا پڑے گا۔ یہ جسم تو خاک ہو جائے گا اور اس کا گھر نگوڑی قبر میں جا بنے گا۔ اس سے آپ ضرورت سے زیادہ جڑ گئے ہو، جس سے جڑنا چاہیے تھا اس کو بھول گئے، جس سے نہیں لگنا تھا اس سے چمٹ گئے۔ جو آپ کی زندگی ہے اس سے آپ نے ہاتھ دور کر لیے، اور جو پل بھر کے لیے آپ کی آرام گاہ ہے، راستے کی سرائے ہے، اس میں رک گئے ہو رات بھر کے لیے۔ سرائے کو تو پکڑ لیا، اپنے آپ کو چھوڑ دیا۔ یہ جسم، یہ تن ہوسی خاک، یہ جسم تو جلد ہی خاک ہو جائے گا، نمانی گور گھرے، اور کسی نگوڑی قبر میں اس کا گھر بن جائے گا۔ آپ اس سے نہ جکڑو۔ اگر پکڑنا ہی ہے تو جیون کے دھارے کو پکڑو۔ لہروں کو کیا پکڑتے ہو؟ پکڑنا ہی ہے تو سمندر کو پکڑو۔ لہریں تو آپ پکڑ بھی نہ سکیں گے اور وہ مٹ جائیں گی۔ آپ مٹھی بند بھی نہ کر پائیں گے اور وہ آگے نکل جائیں گی۔ لہروں کو پکڑنا جسم کو پکڑنا ہے۔ جسم ایک ترنگ ہے، 5 رنگوں کی ترنگ، 5 عناصر کے اس بے کراں ساگر میں اٹھی ایک بڑی لہر ہے۔ 70 سال تک بنی رہتی ہے، 80 سال تک بنی رہتی ہے، لیکن لامحدود کے سامنے 70-80 سال کیا ہیں؟ پل بھر بھی نہیں۔ جو وقت آپ سے پہلے ہوا اور جو وقت آپ کے بعد ہوگا، اس کو حساب میں لو تو آپ جتنا وقت رہے وہ نہیں کے برابر ہے۔ یہ لہر، اس کو تو آپ زور سے پکڑ لیتے ہیں، اور جس میں لہر اٹھی ہے اس کو بھول ہی گئے ہیں۔ جو بنیاد ہے وہ بھول گیا، اوپر اوپر بھٹک رہے ہیں۔ اے تن ہوسی خاک نمانی گور گھرے، آج ملاؤ شیخا، آج ملاؤ شیخا۔ یہ اشلوک بہت پیارا ہے، یہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس کو بہت غور سے بیدار ہو کر سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج اس پریتم سے ملن ہو سکتا ہے شیخ، اگر آپ ان خواہشوں کو بس میں کر لیں جو آپ کے من کو بے چین کر رہی ہیں۔ آج ملاؤ شیخ، آج ملن ہو سکتا ہے آپ کا۔ یہ بہت انقلابی اشلوک ہے، کیونکہ آپ کے مولوی، پیر،
सूफी संत पंडित पुरोहित कहते हैं कि जन्मों का पाप है, उसको काटना पड़ेगा तब मिलन हो सकेगा। और शेख फरीद कहते हैं आज मिलाओ शेख, ये आज ही हो सकता है, इसी पल हो सकता है, इसको एक पल भी टालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह आज भी उतना ही मिल सकता है जितना कभी मिल सकता था, और इतना ही नहीं मिल सकता उसकी कामयाबी में रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ता। आपने गुनाह किए या सवाब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जिस दिन भी उसके साथ चलने पर राजी हों, उसकी आपके गुनाह रुकावट नहीं बन सकते। आप हैं ही क्या, आपके गुनाहों की वक़्त ही क्या हो सकती है। लहर ही मिट जाती है तो लहर की अदाएं कितनी देर चल सकती हैं। इसको थोड़ा इस तरह भी समझ लें, यह भी इंसान का घमंड है कि मैंने बहुत गुनाह किए हैं। यह आपके समझने में मुश्किल पैदा करेगा। आप कहेंगे ये कैसा घमंड, लेकिन उससे भी ऐसा मालूम पड़ता है कि मैं कुछ हूँ, और उससे ऐसा भी महसूस होता है कि जब तक मैं इन सारे गुनाहों को ख़त्म ना कर लूँ तब तक अल्लाह से नहीं मिलूँगा। जैसे अल्लाह से मिलना मेरे किसी अमल की बदौलत होगा। इसीलिए कर्म का, अमल का घमंड घमंडियों को खूब भाया, खूब मरगूब हुआ। घमंडियों के घमंड को ताईद मिली कि हमने ही अमल किए थे, इसीलिए हम भटक रहे हैं। हम ही जब अच्छे अमल करेंगे तो अल्लाह को पहुंच लेंगे, लेकिन हम और मैं छुपी हुई है उसके अंदर। यही फर्क है फकीरों और मुल्लाओं का। फकीर कहते हैं पहुंचेंगे उसके फजल से, अपनी भाग दौड़ और तगोदौ से कभी नहीं पहुंच सकते। ये ख्याल कि हमारे किए से कुछ होगा, यही तो आपको भटका रहा है। असली गुनाह अमलों में नहीं, आमिल अमल करने वाले की नीयत में है। इसीलिए तो एक गुरु ने अपने चेले से कहा, तुम अमल करने का ख्याल छोड़ दो तो आजिज हो जा, फिर तुम्हें कोई अमल नहीं छू सकेगा। अमल कर्म तो कर, लेकिन यूं कि जैसे वही तुझसे वो करा रहा है, तू बीच में नहीं, तू बांस की पौरी हो जा, उसको ही गाने दे गीत। वो गाएगा तो भला, ना गाए तो भला। तू बीच में कोशिश मत कर, तू खुद को बीच में ना ला, खुद को दरमियान में खड़ा ना कर। शेख फरीद कहते हैं आज ही हो सकता है मिलन, मिलाप, वस्ल। ये बात बहुत हिम्मत वाले दरवेशों ने कही है। आपका मन तो खुद ही डरेगा कि ये कैसे हो सकता है आज। असल में हकीकत यह है कि आप आज चाहते भी नहीं, आप चाहते हैं कि कोई कह दे कि कल हो सकता है, आज नहीं, क्योंकि और दूसरे काम करने हैं, हजार धंधे पूरे करने हैं। आज ही हो सकता है मिलन, ये तो कुछ जल्दी ही हो जाएगा। इसमें तो तवक्कुफ करने का, टालने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। इससे मुराद ये है हमारी ही वजह से कुछ होगा, अल्लाह के फजल से कुछ नहीं, उसकी इनायत से नहीं। इसमें बहुत इत्मीनान है कि जन्मों के कर्म हैं, आज ही तो नहीं कट जाएंगे, जन्म ही लगेंगे उनको काटते काटते। साफ है कि जितने दिन मिटाने में लगे उतने ही बनाने में लगेंगे। जितने दिन बिगाड़ा है उतने दिन संवारना होगा। जितनी भी जल्दी करें तब भी जन्म तो लगेंगे ही। इससे बहुत इत्मीनान मिलता है। आज कोई झंझट नहीं, आज दुकान करो, आज चोरी करो, मज़हब की बातें करो, आज आप जैसे चलते हैं चलते रहिए, कोई हल ही नहीं रहा। कल देखा जाएगा, कल हो जाएगा, सब तब्दीली कल आ जाएगी। कल के ख्याल ने इंसान को लामज़हब बनाया है। कल में बहुत सुख है, उसकी आड़ में हम खुद को छुपा लेते हैं। कल होगा, आज तो कुछ होना नहीं, सो आज तो हम जो हैं वही रहेंगे। एकदम तो कोई इनकलाबी नहीं बन सकता, कोई तब्दीली यकदम तो रूनुमा नहीं हो सकती, झटपट तो कुछ नहीं हो जाएगा, सिलसिलावार होगा, आहिस्ता आहिस्ता।
इस जन्म में तो कुछ होने वाला नहीं, सो इस जन्म में जो कर रहे हैं करते रहें और बड़ी अयारी से करें। वक्त जितना भी मिला है गुजार लें, कहीं अगले जन्म में निजात हो ही ना जाए कहीं। इस तरह मशरक में जहाँ कहीं भी। इसीलिए बाबा कार का श्लोक एक इनकलाबी श्लोक है, आज मिलाओ शेखा, आज हो सकता है मिलन, शेख देर उसकी तरफ से नहीं है। हमारे मुल्क में कहावत है, देर है अंधेर नहीं। मैं आपको कहता हूँ, ना देर है ना अंधेर है, उसकी तरफ से कुछ नहीं है, आपकी तरफ से दोनों है। उसकी तरफ से ना देर है ना अंधेर है, आपकी तरफ से देर है इसीलिए अंधेर है। देर की वजह से अंधेर है, टालने का सुख है, आसानी है। तो आज जैसी भी हालत है ठीक है, कल सब ठीक हो जाएगा। कल के सपनों की बुनियाद पर आप आज की तल्ख हकीकत को टालते जाते हैं। कल की उम्मीद में आज की बीमारी बर्दाश्त कर लेते हैं। आज का दोज़ख काट लेते हैं, कल बहिश्त मिलेगी। आज शेख फरीद, आज उस प्रीतम से मिलन हो सकता है, करना क्या होगा। ये जो मन में सोचूं तफक्कुरात का शुरू गुल बपा है, ये सिर्फ बंद हो जाए। अमल को तब्दील नहीं किया जा सकता, सिर्फ सोचों को खामोश किया जा सकता है। सोचे खामोश हो जाएं तो फिर इत्मीनान हासिल हो जाए। वो जो आपके भाव के विचार और जो उनकी तरंगें, झंझनाहटें और शोरगुल आपके अंदर चल रहे हैं, बस उनको आप मुतमईन कर लें। उनको मुतमईन करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ध्यान ज्ञान का है, ज़िक्र फ़िक्र का है, रियाज़त इबादत का है। ध्यान खालिसतन इल्म है, साइंस है। आप इल्मी बुनियाद पर मन की तरंगों को एक के बाद एक मुतमईन करते चले जाते हैं। लेकिन ध्यान का रास्ता रेगिस्तान का रास्ता है। वहाँ सायादार दरख्त नहीं, सरसब्ज धरती नहीं, वहाँ चारों तरफ फूल हरियाली नहीं, परिंदों के गीत नहीं गूंजते। लामहदूद रेत का फैलाव है, तपती हुई रेत का ध्यान का रास्ता खुश्क है, हिसाब का है। दूसरा रास्ता प्रेम का, फरीद का है। आप प्रेम से इतने लबरेज हो जाएं कि आपके जीवन की सारी तवानाई प्रेम मोहब्बत बन जाए। तो जो तवानाई ख्वाहिशें बन रही थी, विचार बन रही थी, तरंगें बन रही थी, वो खिंची आएं और सारी प्रेम में शामिल हो जाएं। इसीलिए तो आप अगर बड़े दरख्त के नीचे छोटा दरख्त लगाएं तो वो पनपता ही नहीं, क्योंकि बड़ा दरख्त सारा रस खींच लेता है। धरती में से छोटे दरख्त को रस नहीं मिलता। जो बहुत बड़े दरख्त हैं वो अपने बीजों को दूर भेजने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बीज अगर नीचे ही गिर जाएं तो वो कभी दरख्त ना बन सकेंगे। सो एक तो ध्यान है कि आप एक तरंग और एक फिक्र को बंद करते चले जाएं। फिर एक प्रेम है कि बंद किसी को न करें, सबको लपेट लें। एक बड़ी ख्वाहिश में, एक प्रेम की बड़ी ख्वाहिश में आप एक बड़ी लिपट बन जाएं, सारी लपटें उसमें समा जाएं। ये दो रास्ते हैं। प्रेम का रास्ता बहुत सरसब्ज है, उस पर परिंदे भी गीत गाते हैं, मोर भी नाचते हैं, उस पर नाच भी है। उस पर आपको बड़े बड़े औलिया कराम मिलेंगे, अल्लाह वाले मिलेंगे। ध्यान का रास्ता बहुत खुश्क है, उस पर आपको महावीर मिलेंगे। लेकिन रेगिस्तान जैसा है रास्ता, उस पर आपको महात्मा बुद्ध बैठे मिलेंगे, लेकिन किसी परिंदे की गूंज आपको सुनाई नहीं पड़ेगी। आपकी मर्जी, जिस रेगिस्तान से लगाव हो। ऐसे भी लोग हैं जिन्हें रेगिस्तान में खूबसूरती मिलती है। फर्द फर्द की बात है। सो ध्यान का अपना सरूर है। ध्यान जिसको सही महसूस हो जाए वो उस तरफ चल पड़े। प्रेम का अपना लुत्फ है। ध्यान का पूरा लुत्फ तो जब मंजिल मिलेगी तब मिलेगा। ध्यान का लुत्फ तो पूरा आखिर में हासिल होगा। प्रेम का लुत्फ कदम कदम पर है। प्रेम की मंजिल पूरे रास्ते पर फैली हुई है। ध्यान की मंजिल आखिर में है।
और रास्ता बहुत रूखा सूखा है। प्रेम की मंजिल आखिर में नहीं, कदम कदम पर फैली हुई है, पूरे रास्ते पर फैली हुई मंजिल। आप जहाँ रहेंगे वहीं सरूर में रहेंगे। आपकी मर्जी, आदमी आदमी को अपना इंतखाब कर लेना चाहिए। आज उस प्रीतम से मिलन हो सकता है। शेख, अगर आप सोचें, काबू में कर लें, इन तरंगों को रोक लें जो आपको बेचैन कर रही हैं। कूंजड़ियाँ, मनु मचंदड़ियाँ, जिन्होंने आपके मन में बहुत अफरत तफरी मचा रखी है, झंझनाटें, तूफान, उनको आप संभाल लें। और ध्यान रहे, प्रेम का रास्ता आसान है, क्योंकि आप सारे जुर्मों को, सारे गुनाहों को अल्लाह के कदमों में डाल देते हैं। आप कहते हैं, ये रहे, हम तेरे साथ डोर जोड़ लेते हैं, तू ही इनको देख। आप एक बड़ी नाव में सवार हो जाते हैं। ध्यान का रास्ता छोटी नाव का रास्ता है। बोलिए सच धर्म, झूठ न बोलिए, जो गुर दे वाट, मुरीदा जो लइए। इसका तर्जमा हमेशा से किया जा रहा है कि मज़हब से सच बोल, झूठ न बोल, जो रास्ता गुरु दिखाए उसी पर चल, उसमें थोड़ा फर्क भी न कर। सच धर्म फरीद का लफ्ज़ है, बोलिए सच धर्म। हकीकी मज़हब से बोल, हकीकत से बोल। सच धर्म का मतलब होता है अपनी असलियत के साथ बोल। जो तू है वही तेरा धर्म है, मज़हब है। अपनी बिसात से बोल, अपनी असल हस्ती से बोल। धर्म से सच्चे बोलू में बात चली जाती है। मज़हब से सच बोल, जैसे कि हम किसी किस्म को दिलवा रहे हों, कसम उठवा रहे हों कि खाओ मज़हब की कसम और सच बोलो, खाओ ईमान की कसम और सच बोलो। नहीं, मज़हब से सच बोल, ऐसा नहीं। हकीकी मज़हब से बोल, वो तेरा जो स्वभाव है, वो तेरा जो सच्चा मज़हब है, तू वहाँ से बोल। जो तू है, तू अपनी असलियत से बोल। ये दोनों जुदा जुदा बातें हैं। धर्म से, मज़हब से सच बोलने का मतलब ये है कि झूठ न बोल, जैसा तुमने जाना वैसा ही बोलो, हकीकत बोल। और जो तर्जमा यहाँ किया जा रहा है वो है, तू अपनी असलियत से बोल, अपनी उर्जन से बोल, अपनी फितरत से बोल। सच्चाई की फिक्र न कर, सच बोल, क्योंकि बहुत दफ़ा सच हकीकत के उलट होता है। बहुत दफ़ा सच्चाई बताते हुए सच नहीं कहा जा रहा होता। बहुत दफ़ा आप बोलते हैं, बिल्कुल फैक्चुअल होते हैं, हकीकत पूरी होती है, लेकिन सच नहीं होता, क्योंकि आपकी असलियत से नहीं कहा गया होता। फ़र्ज़ किया हिंदू और मुसलमानों का फसाद। हक़ैक़ की बहुत फ़िक्र ना करें, सच्चाई की नहीं, क्योंकि सच्चाई तो आदमी का मन ही बताता है। असली सवाल उससे सच की खोज का है, जो आदमी का बनाया हुआ नहीं, जो रब का बनाया हुआ है। सच वो है जो रब के ज़रिए से है। हकीकत वो है जो हमारी तशरीह है, और ये तशरीहात बहुत अलहदा होती हैं। हक़ैक़ तो आपकी तशरीह हैं, आपकी सोच, आपका ज़रूर में शामिल हो गया है। सच अपनी सोच, अपना नुक्ता नज़र शामिल किए बग़ैर देखी हुई बात है। किस्सा कोताहा बाबा फरीद सरकार के अशलोक का मतलब है कि बोलिए सच धर्म, यानी अपनी ज़ात का सच बोलें। हर लम्हे का अपना सच है, अपने मन में गोता जन रही है। आपके मन में जो सच की झलक उभरे वही आपकी ज़ात का सच है, और इसी सच को मज़हब से जुड़ना या बोलिए सच धर्म कहा जाता है।